चलो I'm sorry, sir. अरे कोई नहीं बेटा, होता है, इतना हेक्टिक टाइम है तो। लेकिन जब मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई के टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो 2 मिनट मुझे दे दो। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening. So we will start here with the last question we did it was this. Oh, I have to share this to you. Now you can see my screen, right? Right. And in the Yes, last class, we did this question. Now moving to the next question. Now remember one thing, we are now still on a same page. This is all about finding out the electric field due to different type of source charges. We don't have like a certain obligation that we have to only deal with a point charge. Also introduce some extended object, but still we have some certain constraint that we have to always keep in our mind, that like when we talk about the ring, we don't finding out the formula to find a electric field intensity at any point, rather than we are finding like the value of E, right, at some certain points. And these certain points are like axial points, which will lie on the axis, center. Okay, even when we talk about the infinite long wire, there we have finding out in like at any point P and calculating the electric field intensity over there. But this is not the true in all cases. Okay, so we understand first thing that the formulas we are getting for E, right? We have a okay, so always keep in mind that don't utilize these kind of formula all the time. Always have a look कि वो कहाँ पे पूछ रहे हैं, right? अभी हम क्योंकि डील करने जाएंगे ना बेटा, अभी हम नेक्स्ट आपके लिए आएगा, वो क्या आएगा आप बता सकते हो? डाइपोल, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, डाइपोल पे आपने सुना होगा कि इसके दो पहली बार ये वाला फील्ड लाइंस होगा, तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि ये दोनों एक अलग अलग यूनिवर्स की बात हो रही है। आपके पास कनेक्शन सही जा रहा है ना? आप आवाज सही से मेरे पहुंच रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई इश्यू नहीं है ना? तो मैंने क्या बोला था कि ये तब हम बात करते हैं, ठीक है, ये तब हम बात करते हैं जब ये देखो यहां से ये ऐसा लग रहा है कि ये एक यूनिवर्स में है, इस यूनिवर्स में यूनिवर्स है, ठीक है? सो यूनिवर्स 1 में से पॉजिटिव चार्ज है, सो वी हैव अ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? इसका एक्रोनीम हमने क्या बोला था? फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्यों इसको फोर्सेस के साथ एसोसिएट किया था? क्योंकि यहाँ पे हमें टेस्ट एक्चुअली फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज को ले आते हैं और उस पे जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय द चार्ज, सो उससे क्या हमें मिल जाता है? फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है? तो इसी के लिए इसको हम जो इससे कैलकुलेट करके, याद करो कि मैंने जो बोला था फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे आपस में नहीं है, ठीक है? उसको ड्रॉ करना नहीं है आपको, जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ऐसे कहोगे, वी नो दैट द पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस एंड फील्ड लाइंस एंड दीज फील्ड लाइंस इज एक्चुअली द ELOF, यानी electric field lines of forces for a point positive charge. And these lines, what they do, they originate from this positive charge. So always remember,
कि ये चीज क्या कहते हैं, वी नो, ठीक है। सेम थिंग जब मैं नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करूंगा तो क्या कहोगे, वी दैट द field lines, electric field lines of forces is really radially inward in when charges is a point negative charge, right? So there you can see that when they are, it's a kind of, in this universe there is only this positive charge, this universe there is only negative charge, right? What will happen in a universe when they, both of them, they exist together, how this field lines will change? Told you in the very beginning of the field lines when I was telling you. So this field lines look like this when we have both of the system, means a universe where both particles are existing together. So field line will change. I told you that why it's like looking like this. The reason behind was that the negative charge and positive charge, what they are doing, they are producing their own electric field intensity at that point, at any certain point, right? And the field at that point is the superposition of both of them. So in that way they are changing the field of each other. And we know that from the very beginning when we started this chapter, this topic actually, that the field lines, the E is a vector quantity, right? So this E is at, suppose this at this point, I'm talking about P. So the E at P due to this dipole, if I'll say, I'm saying this one as a dipole, a positive charge and an having same magnitude, but that like they have the same magnitude, always remember. Okay, so I am giving you a brief definition of a dipole. I will like explain it to you in detail just after a minute. Okay, but when I am telling you that at P we have to find out the electric field intensity, okay, at P due to this dipole, so I'll call this one P D POL dipole, right? So what is this? This is actually the E at P due to this, I call it 1. Okay, this positive charge 1 and this negative charge as 2. So EP due to 1 plus EP due to 2. So that's why when they are overlapping, superimposing, like, so then we have a resultant over there, and this resultant field will be always tangential to the field lines. Okay, so if I'll ask you that at P what will be the direction of E, I don't know about magnitude. I don't know about the magnitude, I have to calculate it. But if I'll ask you what is the direction at that P, so I'll call it like, let's draw a tangent at P on this line. So tangent at P on this curve give you the direction of the resultant E. Okay, the net E. We have discussed about this one, right? That's why this is like, that's why like when they are isolated, right, this kind of field lines. But when they are coming together, a universe where they are coming together, so we have a different field lines and they look like this way. So always keep this diagram in mind, how the field lines is there for a dipole. Okay, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, yes, sir. With this one, I'll move to the next portion. 1 second. Yeah, 1 second, just 1 second.
Now let's move to the up definition of the electric dipole. So we know that we are going to deal with something that we understand that when we have to find out the field at any point due to a system of charges. So what we were doing previously, that we were finding out the field due to the individual subsystem, right? So we'll find out the E because of this positive charge at that point, and then we will find out E at that same point due to another source charge, right? And what we do the vector addition of both of them. The electric field intensity at that point due to the dipole, right? So before going to that one, let me give you a definition of a dipole. Dipole is a system of 2-point charges. Okay, they are separated by a certain distance. Okay, we generally assume it 2L. Okay, the length is 2L. Always remember this thing and follow this one. Okay, this kind of rule, I can say that you can even say that this length, it's up to you, but I ask you not to write it down L, write it down 2L. The reason I will tell you later. Okay, so the separation between them is 2L, and the charges, like in this, like what is the nature of the charges on the particles? The one will have positive charge with magnitude Q. The another one should have with equal in magnitude as the positive has. Okay, so if I'll call you like this is a dipole. If it is Q and this is positive, okay, this which is negative and minus, this is 2Q. So this is this a dipole? Is this a dipole? Answer me in the chat box. Is this a dipole? कोई अनम्यूट करके एक बार बोल दो, ये डाइपोल है क्या? बोलो, ये डाइपोल है? मेरा नेट तो सही है ना? हेलो, am I audible to everyone? Yes, sir. So answer it na. I'm asking you, this is charge Q. Okay, this is plus Q and this is minus 2Q. Okay, so is this system of this positive charge and negative charge, are they joining the dipole? Are they making dipole? हाँ या ना, कुछ भी होगा? Yes, sir. Yes. No, sir. किसी ने बोला यस, No, किसी ने बोला नो, किसी ने बोला यस. सो जिन्होंने यस बोला है वो गलत बोल रहे हैं, जिन्होंने नो बोला है, जिन्होंने यस बोला है उन्होंने गलत बोला, नो बोला वो सही बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बेटा. ठीक है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा इस सिस्टम में. ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर इसके ऊपर कैपिटल क्यू है तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होना चाहिए? कैपिटल क्यू. सिर्फ टाइप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तब उसको डाइपोल कहेंगे. ठीक है, तो अगर आप इस चीज को अभी कराऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी के लिए डेफिनेशन के लिए याद रखेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ऑलवेज रिमेंबर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंसेस. Small, I don't say that small always, separated by a distance, and we call it that distance as 2L, right? 2L कह सकते हैं, चाहो तो इसको L भी कह सकते हो. क्यों भाई? कि अगर आपके बीच में सेपरेशन कितना है? 3 मीटर, तो आपने इसको बोला है कि ये सेपरेशन जो होता है वो 2L के बराबर होता है, तो आपका L क्या आएगा? 1.5 आएगा. अगर इसी को आपने बोला है कि 3 मीटर उनके, इसको आप L मान रहे हो तो इसका L कहां पे आ जाएगा? L 3 मीटर आ जाएगा. तो अब ये L 2L मानने से क्या फायदा होगा? ये चीज मालूम चलेगी आगे.
ठीक है, लेकिन ये क्या है, कन्वेंशनल माना गया है, 2L माना गया कन्वेंशनल वे में। इसको 3L भी मान सकते थे कि नहीं, कोई रोकेगा क्या आपको 3L मानने से? लेकिन कन्वेंशनली इसको क्या कह रहे हैं, 2L मानेंगे। इसका रीजन है आगे। Yes. अगर डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कहूं तो क्या कहोगे, इनके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q टाइम्स जो सेपरेशन है वो, तो सेपरेशन कितना हमने मान रखा है, 2L। याद रखना 2L, ठीक है, ये सेपरेशन बिटवीन देम है। और ये जो आएगा वो P आएगा। क्या P एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है? So vector. वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे Q वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो यहाँ पे L कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। Q तो है नहीं, Q तो स्केलर है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप ना, ये इंसान थोड़ी होता है कि जो दूसरे को, इंसान को देख के फितरत चेंज करेगा। ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये अपने बातों पे शुरू अपने हमेशा स्टैंड करेगा। जब E हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो, आप इसको यहाँ यूज करो या वहां यूज करो या कहीं और यूज करो, वो रहेगा ही वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि Q नहीं हो सकता, Q हमेशा ही याद रखना स्केलर क्वांटिटी रहता है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट होगा, इसको हम ऐसे डिफाइन करें, डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो याद करो कि मैंने अगर आपको बोला था कि जैसे डाइपोल मोमेंट्स के लिए अगर प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया और प्रोपोर्शनल टू Q हो गया, तो अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बोलूं कि अगर एक डाइपोल का अगर 1 कूलम है इन दोनों के ऊपर, ये प्लस में होगा, ये माइनस में 1 कूलम होगा, राइट। तो इस चीज में मैंने आपको क्या बोला था, बताओ। सेपरेशन 1 मीटर है, तो और यहाँ पे मैं मान लो 2 कूलम है और ये 2 कूलम माइनस में होगा, और इनके बीच में सेपरेशन 1 मीटर है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा। इसको सिस्टम ए मानते हैं, सिस्टम बी मानते हैं, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्या होगा, बताओ। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्या होगा, ये यूज करो ना, ये यूज करो, Q इंटू 2L। 2L क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच में, 1 मीटर। Q कितना है, 1 कूलम। तो पहले का आएगा, बी क्या होगा, बताओ, कोई ऐसे ही बताओ। 2। 2 होगा, चार्ज 2 है। ये नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव है निगेटिव ऐसे नहीं लेंगे। Q क्या है उस सिस्टम, ऐसे देखोगे ये सिस्टम के ऊपर Q क्या है, सिस्टम के ऊपर चार्ज क्या है, सिस्टम के ऊपर चार्ज क्या है, 0। क्यों भैया, ऐसे थोड़ी आप डेफिनेशन चेंज करते रहोगे। आपने बोला था कि सिस्टम का चार्ज कैसे निकालते हैं, सिस्टम का चार्ज क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, राइट। सारे चार्जेस का जो भी होगा होगा, तो अगर मैं देखता हूं तो इसके ऊपर Q है, इसके ऊपर माइनस Q है, तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो रहा है। भाई सही बोल रहे हो, मान लिया। लेकिन मैं ये Q कौन सा ले रहा हूं, ये Q कौन सा ले रहा हूं, ये वाला Q नहीं ले रहा हूं, किसी एक के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड हो सिर्फ उसको मैं ले रहा हूं, किसी एक के ऊपर। ठीक है, वो वाला Q ले रहा हूं, सिस्टम का Q नहीं लूंगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? No, sir. ये ओवरऑल कैसा सिस्टम होता है, न्यूट्रल सिस्टम का चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है, 0। ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रल सिस्टम रहेगा, लेकिन इसका डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको एक और चीज आप अलग सी फील हो रही है कि नहीं, कि अरे सिस्टम जो न्यूट्रल सिस्टम होता है वो भी क्या फील्ड विल्ड टाइप का प्रोड्यूस, क्योंकि ये देखो, ये तो आप कह रहे हो कि एज अ सिस्टम ये न्यूट्रल है,
और यहाँ पे देखो तो कोई ना कोई, यहाँ पे तो सारी जगह फील्ड आ ही रहा है यार, यहाँ पे भी फील्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीरो आ रहा है। तब तो ये थोड़ी अलग बात लग रही है। आप कह रहे थे कि न्यूट्रल चीज कभी बनाती नहीं है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। हमने क्या किया था ना, उस समय क्या किया था, एक क्वेश्चन जब हमने किया था याद है, उस समय क्या बोला था कि ये हेक्सागोन है, राइट? हेक्सागोन वाला याद करो जो हमने क्वेश्चन किया था, याद है क्या आपको? उस समय मैंने बोला था कि इस वर्टिसेस पे अगर चार्ज गायब है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बाकी पे चार्ज रखा हुआ है, अगर मान लो कि बाकियों पे चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज 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 है, इस पे था, तो इसको हमने क्या बोला था कि इसको दो सिस्टम में मानेंगे, कि दो सिस्टम ओवरलैप हो रहा है। एक सिस्टम ऐसा जिसके ऊपर सारे के वर्टिसेस के ऊपर पॉजिटिव जो भी चार्ज रखे हुए थे, जो इस पे रखे हुए थे, वो सारे इसके ऊपर मान लेंगे, प्लस सेम स्ट्रक्चर पे यहां पे जहां पे इसको मान लेते हैं पॉइंट, सॉरी वर्टिसेस ए, सो वर्टिसेस ए पे यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया था। सेम वर्टिसेस पे क्या करना है हमें, दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बस अपोजिट इन नेचर, यानी इसको निगेटिव वाले को रख, राइट? यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, इसके अपोजिट वाले को रख देंगे, और फिर कह देते थे कि वो दोनों सिस्टम ओवरलैप करेगा तो न्यूट्रल बन जाता है वो पॉइंट, राइट? और न्यूट्रल बन जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, अगर मैं उसके कारण बोलूंगा कि वहां फील्ड अगर मैं निकालना है तो आप इन जनरल क्या करते, सारे के कारण निकालते। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इधर निकालते, इसके कारण इधर निकालते, इसके कारण इधर निकालते, इसके कारण इधर निकालते, राइट? यही करते हैं आप। लेकिन आपने ये चीज न्यूट्रल बन जाती है तो वहां पे आपने फील्ड को अज्यूम नहीं किया था कि इसके कारण कोई फील्ड बनेगा ही नहीं, राइट? यहाँ पे क्योंकि इस सिस्टम से आप बात कर रहे हो तो इस पे पॉजिटिव भी है और सेम पे निगेटिव भी है। जब ये सिस्टम ओवरलैप करेगा, ये सिस्टम है, एक हेक्सागोन ये वाला लिया था और दूसरा हेक्सागोन ये वाला लिया था, एक के ऊपर क्या कर दिया था, बोला था कि वहां पे पॉजिटिव रख दिया था जहां पे जिस वर्टिसेस पे कोई चार्ज नहीं था, सेम वर्टिसेस पे निगेटिव डाल दिया था। और मैंने कहा था कि जब ओवरलैप, ऐसे टाइप ओवरलैप करेंगे, जैसे ये सिस्टम है तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, सपोज करो जिस वर्टिसेस पे नहीं था, और मैं कह देता था कि उसके कारण फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल के कारण फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि न्यूट्रल होने के कारण भी फील्ड टाइप का चीज प्रोड्यूस करेगा? तो ये याद रखना, ये चीज याद रखना कि न्यूट्रल होने के लिए, अगर सिस्टम न्यूट्रल है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, कर सकता है। कैसे? सेम चीज आपको मैंने बात बताई थी ना, एक चीज याद रखकर मैं आपको पीछे रिकॉल करवा रहा हूँ थोड़ा सा, शील्डिंग के ऊपर क्या कहते थे, राइट? शील्डिंग है कि नहीं है, शील्डिंग हमने पढ़ी थी ना, क्या कहा था कि किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी मेटल, तो क्या होता है, उस मेटल बॉडी क्या करता है, अपने अंदर फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने देता है। तो अगर हम पहले देखेंगे, अगर मेटल बॉडी है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपने रैंडम मोशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही एक एक्सटर्नल फील्ड आती है तो क्या करता है, क्या करता है कि इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या कह रहा है कि मैं अपने मेटल के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं होगा, तो वो अपने आप को क्या किस टाइप से कॉम्प्रोमाइज करता था, वो कहता था कि ठीक है तो फिर आप अपने हिसाब से रीस्ट्रक्चर करो। तो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इस मेटल के ऊपर ओवरऑल क्या है, पहले न्यूट्रल था, तो एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस हो जाने से, एक्सटर्नल फील्ड अगर आ जाता है, एक्सटर्नल फील्ड अगर आ जाता है, अगर एक्सटर्नल फील्ड ये जो बाहर वाला है ये आ रहा है किसी दूसरे सोर्स चार्ज के कारण, मान लो कि बहुत लंबा इनफिनाइट प्लेट है, ठीक है, उसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब उसके सामने ये मेटल रखा हुआ है, तो मेटल क्या कर रहा है, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन है कैसा मेटल, मेटल पहले भी न्यूट्रल था बाद भी न्यूट्रल रहेगा,
रहेगा कि नहीं? उसके ऊपर जितना पॉजिटिव था उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज उतना ही रहेगा। लेकिन इस बार क्या कर लिया उसने, सेपरेशन कर लिया, सेपरेट कर लिया अपने आप को, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, राइट। लेकिन रहेगा तो न्यूट्रल, समझ रहे हो कि नहीं? ये मान रहे हो ना कि रहेगा तो वो न्यूट्रल ही, ये मानते हो कि नहीं? Yes, sir. यानी न्यूट्रल रहेगा तो इसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करने, क्या करेगा? मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बात करेंगे वैसे ही। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहेगा? एक्सटर्नल फील्ड है तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो ऐसे रहेगा ही रहेगा। अब मेटल को अगर तुम्हें नहीं करने देना अपने अंदर में नहीं करने देना है तो तुम एक काम कर लो भैया, इसके अपोजिट एक फील्ड बना लो, ये लो, इसके अपोजिट एक फील्ड बना लो अपना तुम, और सुपरपोजिशन लगा दो। यानी इस पॉइंट पे मान लो कि इस पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल फील्ड ऐसे, और इसके कारण मेटल के कारण जो मेटल रीडिस्ट्रीब्यूट अपने आप को किया, अपने जो चार्जेस, जो चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर थे, इलेक्ट्रॉन खास तौर पर, तो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करके क्या किया? एक फील्ड प्रोड्यूस किया। कैसा? जो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा और सेम इन मैग्नीट्यूड का होगा। तो अब देखो इन दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो कर दे रहा है, तो क्या मेटल इस बेसिस पे क्या कर रहा है? जीरो बना रहा है ना, हर में जीरो बन रहा है। इसके अंदर कोई भी किसी पॉइंट के अंदर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है? जीरो हो रही है? ये बात समझ में आया? यस सर। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है? ओवरऑल ये मेटल जो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक फील्ड प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो इसका अर्थ से हमें ये मालूम चलता है कि ऐसा कहने के लिए है कि न्यूट्रल भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन कभी भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा जब 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 तब जब इनके बीच में सेपरेशन जीरो हो जाए। यानी 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 क्या क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि सेपरेशन जीरो हो जाएगा? तो मतलब सेपरेशन हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन जीरो होगा तो देखो, और दोनों पॉइंट चार्ज होंगे, दोनों पॉइंट चार्ज होंगे। पहला बात, पॉइंट चार्ज होंगे, और दूसरी बात उनके बीच में सेपरेशन बिल्कुल जीरो हो तो देखो क्या होगा? तब क्या होगा? देखो अगर मान लो कि इसी के बीच में अगर इसी के ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे एक हम पॉजिटिव क्यू लेके आ गए, ठीक है। तो ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। फिर उसी पॉइंट पे माइनस क्यू लेके आ गए, इस पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, इसको मान लेते हैं पॉइंट क्यू। तो पॉइंट पी पे हम क्या कर रहे हैं? चार्ज ला के रख रहे हैं, ठीक है। सो एक बार प्लस प्लस और माइनस क्यू लाए और फिर दोनों को ओवरलैप करवा दिए। अब देखो प्लस क्यू वाला जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉइंट क्यू के पास, क्या माइनस क्यू वाला भी वही मैग्नीट्यूड का पे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन? क्या ऐसा होगा क्या? अरे हाँ या ना बोलो। मैंने क्या बोला आपको कि एक पॉजिटिव क्यू को हम इस पॉइंट पी पे ला के रख दिए। दूसरी बार क्या हुआ कि एक माइनस क्यू सेम इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट टाइप का है चार्ज, ठीक है। तो उसको हम पॉइंट पी पे ला के रख दिए, और हम किसी भी पॉइंट पे जिसको मानते हैं एक पॉइंट क्यू, ठीक है। अब क्यू पे हम ये फील्ड निकाला है मुझे, फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले मैं पॉजिटिव क्यू के कारण निकालूंगा, तो उसका उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, ये इसको लाइन करना होगा, ये ऐसा टाइप का होगा। क्या मैं बोलूं कि माइनस क्यू, क्या मैं बोलूं माइनस, ये सॉरी ये तो माइनस क्यू के कारण हुआ, सॉरी क्या माइनस क्यू के कारण तो इनवर्ट्स होगा ना। तो पहले मैं लेता हूं पॉजिटिव क्यू के कारण यहाँ पे कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड टाइप का। निगेटिव कारण कैसा होगा? रेडियली इनवर्ड का। क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा? यस सर। मैग्नीट्यूड दूसरों क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर देंगे। यानी
अगर पॉइंट चार्ज सेम पॉइंट पे, यानी उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट करेंगे वो सच में फील्ड नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट, इनके बीच में सेपरेशन होगा, कहने के लिए वो न्यूट्रल होंगे, लेकिन तब वो फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने आपको एक बात बोला था कि पॉइंट चार्ज में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, पॉइंट चार्ज में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचेंगे भी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर पॉइंट चार्ज में अगर आप बोल रहे हो कोई साइज का है, अगर मान लो कि दूसरा कोई पॉइंट चार्ज आता है और कहता है कि तुम अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करो अपने अंदर के चार्जेस को, तो क्या करें? लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए। ये तो है पॉइंट, इसमें क्या सेपरेशन होगा? इसका तो कोई सेपरेशन है ही नहीं। तो ऐसा क्या करेगा? हमेशा वो क्या रहेगा? मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू भी बनाएगा, तो कोई फायदा होगा उससे? कोई फील्ड प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें हो सकता है। ये कहने के लिए न्यूट्रल रहेगा, ये प्लस क्यू उधर साइज लेगा, ये माइनस क्यू उधर लेगा, ठीक है, अपने आप को मान लो इंड्यूस करके। अब देखो इस कारण से क्या होगा, अगर हमें जब उस समय कैलकुलेट करना होगा तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं बोला ऑब्जेक्ट में हम जाते हैं तो हम हमेशा जनरली मानेंगे कि इन दोनों के कारण, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज आप जान गए कि न्यूट्रल होता है लेकिन वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब आगे प्योर डेफिनेशन के बाद